Now you know very well, we have special guest today, respected chairperson of the school committee, Sri Deepak Dudane sir, today's chief guest, respected principal sir, all the teacher staffs, and my dear students. Students, you know very well, nowadays in our school we have a summer camp, and every day you are getting something new in every day summer camp. So today also there is a special day for you. We have today special guest. We have today special topic of the summer camp. And this today's guest lecture is the part of summer camp. Now today we have a special guest, Har Govind Kamdikar sir. Now today's topic is personality development, and the special guest is going to discuss on this topic. Har Govind Kamdikar sir is the educator, life coach, motivational trainer, mind power trainer, and also the director of English Hardin of the coaching class. Today we have special guest. Now I request the principal sir to welcome the guest by giving a rose. Okay, thank you sir. Now we have already less time, so without wasting my time, I hand over my mic to the special guest, Sri Harvinder Singh Kamdikar. Thank you very much to invite me here to present something. So, मैं comfortable with you here or here? मैं वहाँ पर आकर बोलूँ या यहाँ से बोलूँ? Yes, sir. It is better way to go inside. Yes. And suppose there is a problem to them, they will directly contact with you on the mic. You can see that whether they are going to understand this matter or not, and whether there is any problems to them. Definitely. I would like to interact with you personally. So before I start, I would like to thank you, all of you, those who are here. Hello. Those who are here and invite me as a special guest. So today I am going to deliver a simple basic principle of personality development. तो क्या कोई बता सकता है पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? What does mean by personality? कोई बच्चा? सिर्फ एक ही शब्द है, लाइक पर्सनालिटी. पर्सनालिटी एक शब्द सुना है आपने दोस्तों? हेलो, कितने लोगों ने सुना है पर्सनालिटी? ये शब्द कई बार लोगों को बोल दिया जाता है. तो व्हाट डज मीन बाय पर्सनालिटी? नहीं, चलो घबराइए मत, मैं बता देता हूँ. बी कंफर्टेबल. पर्सनालिटी का मतलब है अ पर्सन ऑलरेडी हैज सम एबिलिटी. एक ऐसा व्यक्ति जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी क्षमता मौजूद है, उसकी एबिलिटी है. बट प्रॉब्लम इज दैट कि उस एबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है. लाइक हियर इनसाइड योर ब्रेन देयर इज अ जिन. एक बहुत बड़ा जिन है, ठीक है, एक बहुत बड़ा जिन है. तो मैं जब छोटा था तब अलादीन और उसका चिराग, इसकी स्टोरी काफ़ी पढ़ता था मैं, राइट. तो सिमिलर यहाँ पर एक अलादीन का चिराग है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस अलादीन के चिराग को जब तक आप घीसेंगे नहीं, रगड़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं कराएंगे, तब तक वो जिन बाहर नहीं आएगा. और मैं जब छोटा था तो इस कहानी में एक बहुत सिंपल सा प्रश्न था उस जिन का. और जिन का प्रश्न ये था कि आपका क्या हुक्म है मेरे आका. इट मीन्स व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, है ना. तो आपका ब्रेन भी आपको ये पूछता है व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी.
तो आप जो आंसर देते हैं वही आपके सामने प्रेजेंट होता है, राइट। तो हर एक इंसान में अलग अलग कैपेसिटी होती है, यू कैन से एबिलिटी होती है। लाइक कोई एक अच्छा डांसर बनता है, सिंगर बनता है, एक अच्छा वक्ता बनता है, राइट। एक टीचर, लेक्चर, जो भी आप बनना चाहें वो बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस जीन को पहले बताना होता है, उस मेमोरी को पहले बताना होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, राइट। आप में से कितने लोगों को ABCD आता है? अरे बस इतने ही लोगों को ABCD आता है। ABCD EFGH हेलो, सबको आता है? चलो मैं थोड़ा सा प्लीज लिखने जाता हूँ। ABCD कौन बोलना चाहेगा? एक तो हाँ देख सकते हो। A B C D E F E G H I J K R S W D V W X Y Z. कोई बात नहीं, क्लैप करेंगे। एक बॉय मिले थे क्योंकि हमने जल को मौका दिया था। हाँ तुम आ जाओ। यस A B C D E F F I J K L M U R S T U V W X Y Z. वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बड़ा बच्चा कोई जिसे एबीसीडी आता है? नहीं बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा, बड़ा ही है। आ जाओ बस। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. अच्छा 1 से लेकर 10 तक करना है। 1 to 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 to 10 को उल्टा बोल के दिखा। 10 9 8 7 6 5 4 2 2 1. 10 9 8 7 6 5 4 2 4 3 2 1. एक मिनट, अब हम एक और काम करेंगे। ऐसा कोई बच्चा है जिसे एबीसीडी उल्टा बोलना आता हो? उल्टा, जेड से लेकर ए तक, जेड से लेकर ए तक। इट इज नॉट असेंडिंग ऑर्डर, इट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। जेड एक्स वाई यहां से लेकर ए तक। आस्क योरसेल्फ, अपने आप को पूछो, एबीसीडी मैंने बचपन से नहीं सीखी, मैंने 5th स्टैंडर्ड से सीखी, लेकिन यहाँ पर 4th स्टैंडर्ड से। हेलो, ABCD जिसे हम असेंडिंग ऑर्डर में कहते हैं, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई बोल सकता है? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जेड पहले बोल रहा है, फिर जेड वाई एक्स यहाँ से। हेलो, ऐसे अरे यहाँ से जाना साइड से। नो प्रॉब्लम। Z Y X W आस्क योरसेल्फ, अपने आप को पूछो, क्या आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ABCD आती है? U E U नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, प्लीज क्लैप फॉर हर। मैं यहाँ पर आपका टेस्ट नहीं लेने आया दोस्तों, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस चीज को हमने असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा है, कि वो ABCD क्यों ना हो,
वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिफिकल्ट हो जाती है, राइट? क्यों? क्योंकि हमने उस माइंड को असेंडिंग ऑर्डर में ट्रेन किया, नॉट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लाइक अगर मैथ्स की बात करते हैं तो 1 to 10 या 100 हम असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में ट्रेन है। अगर मैं किसी को कहूँ कि 100 से लेकर 1 तक बोलिए, दैट पर्सन कैन इजीली टेल यू, वेरी इजीली, और वो आराम से बता देगा। व्हाई? रीजन इज दैट कि उसका माइंड उस चीज के लिए प्रिपेयर है, असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए। वही एक सिंपल ABCD असेंडिंग के लिए रेडी है, नॉट फॉर द डिसेंडिंग। इट मीन्स दैट ऑलरेडी उस पर्सन में एबिलिटी है या नहीं है? ये व्यक्ति ABCD बहुत अच्छे से बोल रहा है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में, नॉट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स कि वो कमजोर है क्या? इसका मतलब वो कमजोर है क्या? नहीं, उसने अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारे वेरियस टॉपिक हैं, लाइक माइंड टेक्निक्स, पब्लिक स्पीकिंग, हाउ टू मैनेज द टाइम, हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट पीपल, और मैं तो कहीं अपने स्टूडेंट को ये भी सिखाता हूँ, हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट बॉस, हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट हस्बैंड एंड हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट वाइफ। ये बहुत डिफिकल्ट जॉब है, हाउ टू हैंडल, बिकॉज हैंडलिंग द पीपल ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सक्सेस होते हैं। एक स्कूल में, जो स्कूल नहीं होगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज में रिसर्च हुआ था, और रिसर्च इस बात का कि कितने बच्चे आगे चलकर सक्सेसफुल लाइफ जिएंगे। वो रिसर्च हुआ था कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, और वहां पर रिजल्ट आया था, जो सबसे हाईएस्ट क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी है, वहां पर रिसर्च हुआ था, ओनली 2% रिजल्ट है। तो आप सोचिए अपने इंडिया में क्या रिजल्ट होगा। रीजन इज दैट कि बचपन से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन एक चीज नहीं सीख पाते हैं, दैट्स व्हाट डू यू वांट टू बिकम। आप क्या बनना चाहते हैं और कैसे बनना चाहते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबके हाथ में बलून है, बलून 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 मिला है, तो बलून देना चाहूंगा। हम एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है, सिंपल सा प्रैक्टिकल है। आपके हाथ में एक बलून दिया जाएगा, उस बलून को फुलाना है। क्या करना है? ओके, फुलाना है। तो देखते हैं कौन जल्दी जल्दी बलून फुगाता है, फटाफट। यस, इन बिटवीन में देखिए आपके हाथ में ये बलून मिलेगा, इसे फुलाना है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। साथ ही साथ आपको भी मिलेगा, पता है ना? हाँ, टूथपिक भी, लेकिन किसी को टूथपिक चुभाना नहीं। जो मिला वो ले लेके। हाँ, टूथपिक भी दे दी। फुलाना है, उस बलून को फुलाना है। फुलाइए। अच्छा, कितने लोगों को बलून मिला ही नहीं? नहीं मिला, ओके, कोई बात नहीं। कितने लोगों को मिल गया बलून को? फुल दो तरफ से उड़ना नहीं है अभी। हाँ, अगर रखिए, फोड़ना नहीं है। हाँ,
खुलाइए। हो गया? डन डन। अच्छा टूथपिक भी हाथ तो टूथपिक मतलब वो नहीं, हाँ अच्छा प्रश्न ये है सिंपल सा, इसके लिए छोटा सा टास्क है, अपना बलून फोड़ना नहीं है। आपके हाथ में टूथपिक है, क्या करना नहीं है? अपना बलून फोड़ना नहीं है। तो मैंने ये कहा कि अपना बलून बचाना है। हाँ बचाना है। अच्छा जितने बलून लेकर आए सब स्टेज पर आ जाइए, जिसके पास बलून है सिर्फ उतने ही लोग, जल्दी तुरंत। दो चीजें खाने में, एक बलून और एक टूथपिक, राइट? इस बलून को अपने बलून को फोड़ना नहीं, बस इसका ध्यान करेंगे। हाँ यहाँ पे भी फिर नीचे कोई प्रॉब्लम, मैं स्टैंड ले। जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा आपको क्या करना है, सुनिए ध्यान से। आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ अपना बलून नहीं फोड़ सकते। आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ अपना बलून नहीं फोड़ना है, अपना नहीं फोड़ना है। मैंने नहीं कहा तुम कुछ भी कर सकते। ओके बहुत जल्दी बोल रही है। आइए बैठे, सुनते भविष्य पूछते हैं। जल्दी बैठिए। और सब लोग बड़े बच्चे बैठ रहे हैं पहले। बैठ जाओ बेटा। बैठो अभी बैठो। प्लीज बेटी की साइड इधर आइए, वापस आ जाइए सभी लोग। ओके तो माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, अपना बलून मत केवल कहा कि दूसरे को बलून फोड़ना है। ओके प्लीज सी बैठो। कैसे बैठे हो? इस प्रैक्टिकल से आपको क्या समझा पता नहीं, लेकिन एक मजा आया। चलो मैं एक रियलिटी बताता हूँ। बलून लाइफ इज योर नॉलेज। हेलो, बलून में जो एयर है वो एयर एक
नॉलेज की तरह है। किसकी तरह है? और साथ ही साथ हमने आपको टूथपिक दी थी, तो ये है वेपन। ये क्या है? वेपन। तो आज हम जिस सोसाइटी में है वहां पर नॉलेज के साथ क्या प्रोवाइड किया जाता है? वेपन, शस्त्र। तो आज अच्छा नॉलेज सिक्योर करने के लिए या सेफ रखने के लिए बहुत जरूरी है कि अपने वेपन्स को नीचे रखें। बहुत सारे लोगों ने मजाक ये काम किया है, जो मैंने कहा था कि अपना बलून बचाना है। क्या करना है? मैंने ये बोला था कि दूसरे को बोलना है नहीं। तो इट मीन्स हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो अपना बलून भी फोड़ेंगे और दूसरे का भी बलून फोड़ेंगे। इट मीन्स अपना ही नॉलेज डिस्ट्रॉय करेंगे और दूसरे का भी नॉलेज डिस्ट्रॉय करेंगे। तो आजकल जो सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो इसी प्रकार का नॉलेज है जो आपकी मासूमियत से खेल रहा है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत छोटी छोटी चीज आती है। पहली चीज आती है एथिक्स। अब आपको ये शायद पता नहीं होगा, एथिक्स मतलब होता है एक फाउंडेशन होता है कि हाउ टू बिल्ड कैरेक्टर बिल्डिंग। जब तक आप कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं करेंगे एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक रेडी नहीं होगा। लाइक आपने रिसेंटली एक फंक्शन सेलिब्रेट किया होगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 14 अप्रैल, है ना? अरे ये सुनो, 14 अप्रैल लोगों ने सेलिब्रेट किया ना? अच्छा, शिवाजी जयंती सेलिब्रेट करते हो? तो हम जितने भी महापुरुषों की पुण्य स्थिति या उनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं उसके पीछे रीजन है। When they were kids, तो वो छोटे बच्चे थे, तब उन्होंने सबसे पहले फाउंडेशन रखा कैरेक्टर बिल्डिंग। तो उन्होंने अपने कैरेक्टर पर सबसे पहले वर्क किया, और जब आप कैरेक्टर पर वर्क करते हो फिर आपके बहुत सारी चीजों पे वर्क करना शुरू होता है। कैरेक्टर मीन्स हाउ टू थिंक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सोचना कैसे, ये बहुत जरूरी है। आपको अभी बलून मिला था, तो बलून में तो हमने एयर डाल दी, लाइक एक विचार डाल दिया, लेकिन उसमें क्या हुआ? फूट गया ना, है ना? अभी इसका बलून जैसे का वैसे, और किसका बलून है? अच्छा, इससे तो हवा ही निकाल के रख दी। खड़ी हो जाओ। आपने क्या किया? कैसे बचाया? ये दीदी को बोल रही, दीदी छोड़ना नहीं प्लीज, है ना? मतलब वो अपने कैरेक्टर से उसे बता रही थी हाउ टू सिक्योर द नॉलेज, अपने नॉलेज को कैसे सिक्योर किया जाए। तो दोस्तों मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपको सबसे पहले वर्क करना है आपके कैरेक्टर बिल्डिंग पर। दूसरा आपकी पर्सनालिटी पर, लाइक हाउ टू थिंक, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू लिसन। सुनना एक बहुत अच्छी कला। आजकल लोग सुनते नहीं है, पता है क्यों? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लिसनिंग। 5 प्रकार के सुनने वाले लोग होते हैं। पहला लिसनर होता है जिसे हम कहते हैं मोटे तौर पे इग्नोर लिसनिंग। इग्नोर का मतलब होता है कि वो सुनता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल कई बार पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बेटा सुनता ही नहीं, दो तो कान है फिर भी सुनता नहीं, ऐसा नहीं। इट मीन्स उसके कानों पर शब्द पड़ते हैं लेकिन वो क्या करता है? स्टार्ट इग्नोरिंग। एक बच्चा सुनता है और वो इमिटेट करता है, मतलब थोड़ा सा दिखाता है। आप जैसे कितने लोग हैं जो टीवी सीरियल या डांस परफॉर्मेंस के बीच में कोई स्पीच आती है और वो सुनकर आप रोते हो? पर डांस कॉम्पिटिशन चल रहा है और उसके बीच में कुछ एक इमोशनल डायलॉग आते हैं, फिर हम सुनकर रोते हैं। या फिर आपके घर में किसी की शादी हुई और खास करके सिस्टर की, तो उसकी जब विदाई की वीडियो चालू होती है और वो गाना लगता है तब हम रोना शुरू करते हैं। एम्पैथेटिक लिसनर। एम्पैथेटिक का मतलब होता है सुनकर इमोशनल हो जाते हैं।
राइट? तो ऐसे 5 टाइप्स के लिसनर होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपकी सुनने की क्षमता कैसी है। तो लिसनिंग पर बहुत काम करना पड़ेगा, तो फिर हम बहुत सारी चीजें डेवलप कर पाएंगे, राइट? आपके अंदर कोई क्वेश्चन है इस एक्टिविटीज या इस चीज को लेकर? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है आपके पास? अच्छा, आज आपने क्या सीखा ये बताइए, अभी आपने क्या सीखा? इस थोड़े देर में आपने क्या सीखा? बलून फोड़ने की एक्टिविटी से लेकर अभी तक क्या सीखा? किसी की नॉलेज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ये एक पॉइंट सीखा। और क्या सीखा? मैं पीछे हूं, कुछ बताता है? यस, क्या सीखा? मेहनत करना बहुत हार्ड है और उसे बर्बाद करना बहुत कठिन है। और कोई? हेलो, बोलिए बोलिए, फटाफट फटाफट। मेरा रोल खत्म, आपका रोल शुरू। हाँ, क्या सीखा आपने? एक 5-10 मिनट का एक्टिविटी किया। लगता है कि हम ज़्यादातर ध्यान बस खुद को इम्प्रूव करने के लिए देते हैं, ना किसी और का बुरा सोचना चाहिए और उनको जेलसी किसी और के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ओके, और फटाफट बताइए। स्पीकर अपने आप को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और बॉयज में पूछे। हेलो बॉयज, बताइए आपने क्या सीखा? मैं माइक हूँ। हाँ, पकड़ी पूछिए। अरे कोई टेस्ट नहीं है, इट्स नॉट एग्जाम, जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ। क्या सीखा? यही कि जो हम नॉलेज बढ़ाते हैं, नॉलेज बढ़ने के बाद मतलब लोग तैयार है नॉलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको पीछे खींचने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि दूसरे की नॉलेज देख के उनको पीछे के लिए कोशिश करते हैं। अपना बलून नहीं फोड़ना है, अपना नहीं फोड़ना है। वो मैंने नहीं कहा, तुम कुछ भी करो। ओके, प्लीज सिट और भी बैठ जाइए। नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई अपना कोई पैर पकड़ के अपन कुछ जगह करते हैं। बात सही है। क्लैप। अभी जो एक्टिविटी हुई उससे मुझे तो बहुत मजा आया। वेरी गुड। क्या सीखते हो? मुझे उससे ये सीखने को मिला कि मतलब हम खुद का तो प्रोटेक्ट रहते ही है, तो दूसरों का भी बर्बादी करते हैं, तो इसलिए खुद का पहले डिफेंस करो फिर बाहर में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। देखिए मुझे मतलब बहुत मजा आया है, बट लोग कैसे करते हैं मतलब दूसरों का देखते पहले कि वो क्या कर रहा है, फिर वही मतलब सेव करते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब अपने अपने मतलब अपना डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत गुड। क्लैप क्लैप। यहाँ पर कोई छोटे बच्चे कुछ बताना चाहेंगे?
बात है, तो हमें दूसरों का नॉलेज भी अपनी कैसे खत्म नहीं करना चाहिए, उनका नॉलेज उनके पास ही रहना चाहिए। उनकी वजह से भी हम सीख सकते हैं। अगर हमारा नॉलेज गया तो हम उनके पास जाकर सीख सकते हैं, पर हम अपने जैसा बनाना चाहते हैं दूसरों को भी। वेरी गुड, तालियां इस बच्चे के लिए। फटाफट। यस, सुंदर सी बच्ची ने हाथ उठाया। मुझे ये सीख मिली कि हमें खुद पर विश्वास करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक गोल्डन प्रिंसिपल बता रहा हूँ मेरे लाइफ का। ये फाउंडेशन बहुत सिंपल है और इजी है। पहला प्रिंसिपल लर्न। पहला प्रिंसिपल क्या है? जोर से बोलिए। लर्न मतलब सीखना, राइट? फर्स्ट प्रिंसिपल इज लर्न। लर्न मतलब सीखना, राइट? सेकंड प्रिंसिपल, जो हमने सीखा है उसे करना, लाइक डू। क्या सीखा है सेकंड प्रिंसिपल? डू करना। पहला प्रिंसिपल क्या है? लर्न। प्रिंसिपल क्या है? डू। दो मतलब हमने नॉलेज टीचर से, ट्यूशन से, घर से, पेरेंट्स से, उसे करना, डू। जब आप कोई नॉलेज सीखते हैं, से करते हैं, तो थर्ड प्रिंसिपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। दैट्स कॉल्ड टीच। थर्ड प्रिंसिपल क्या है? जोर से बोलो। टीच। टीच मतलब पढ़ाना। लर्न एंड टीच। जो भी व्यक्ति, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप में से जो लर्न करता है, जो डू करता है और वो डू को टीच में परिवर्तित करता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्रेंड है, इसने कोई चीज सीखी, उसको प्रैक्टिकल किया और अपने फ्रेंड को सिखाया, तो इसका नॉलेज 100% बढ़ जाता है। बिकॉज व्हेन समबडी ट्राई टू टीच समबडी, तो उसमें अपने नॉलेज इंक्रीज हो जाता है। तो आज का मेरा प्रिंसिपल आपके लिए बताना चाहता हूं, दैट्स लर्न, डू एंड टीच, राइट? So thank you for giving me beautiful opportunity to speak in front of you. Thank you very much. मेरा नाम हरगोविंद है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप यहाँ पे आए, हमें बहुत अपना कीमती समय, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। और आप लोगों को कैसा लगा सेशन? सिर्फ अच्छा? तो जोर से बोलो, जोश में बोलो, चाहे सर को थोड़ा अच्छा जवाब मिल जाए। तो और अगर ऐसे कुछ और चाहते हो कि सर दोबारा आए, कुछ और एक्टिविटी कराएं, तो सर से रिक्वेस्ट आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर सर टाइम देंगे तो ऑफकोर्स अदर एक्टिविटी भी सर लेंगे और बहुत अच्छा आपको अदर कुछ ऐसी नई चीजें सिखाएंगे जो शायद आपको क्लास में ना मिले या फिर मिलता होगा, लेकिन इस तरह से नहीं मिलता होगा प्रैक्टिकली, है ना? टीचर तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हाँ भाई ये अच्छा करो, ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन प्रैक्टिकली जो आज दिखा के सर ने आपको समझाया है वो बहुत अच्छा एक लेसन था आप लोगों के लिए, सबके लिए एग्जैक्टली। तो ये चीज अपने लाइफ में इनबिल्ट को आना चाहिए। जितना जल्दी आप सीखोगे, उसको करोगे, उतने जल्दी आगे बढ़ोगे, राइट है? ठीक है? तो थैंक यू आप लोगों का भी सबका, और सर का स्पेशली मैं थैंक करना चाह रहा हूँ क्योंकि सर ने हमें जो अपना कीमती समय दिया, अपना वक्त निकाला है, उसके लिए सर धन्यवाद। थैंक यू। इसका एक न्यूज़ बाहर
All guest appearance, Mr. Kamlekar sir, principal, all teachers, and my dear friends. Now our examination has been finalized and we are waiting for our results this last academic year. It's a good platform already Dharampet Education Institute has given to the students that how to talk in English. From last 9 years as the chairman of LNC, always I am going to talk with teachers that our standards should be developed in all manner. Whereas our parents are hopeful that my children are going to take education at Dharampet English Medium School and Junior College. This is our English Medium School. In last LNC, our honorable president has told and implied with all teachers that our standard of education is to be high compared to other schools. And whereas in our school premises, interaction of each teacher with the student, it should be in English. Because always I am going to say that English is the international language. I can't say. From last 40 years I am going to do the social organizations, continuing my job in central government also. Because in central government all official language is in English. Whereas always I am going to take joyfully that I am not a student of literature. From first standard in corporation school up to post-graduation up to GS college, I have taken my post-graduation in Marathi medium. My mother is totally this and my father was in the 4th class. There is no any educational criteria or educational field along with my family. But whenever I entrance in the college and then after going to Bombay for my job, at that time I listened something, I have learned something and I have developed skills. So that's always I am going to interact with my teachers and students that English is an international language and impressive language. For that, we have to do some preparation. First of all, we have to read whatever literature is available with us. Whereas our study book, our novels, and it is a better way to all students, including this sir or all my teachers. Newspaper is the good job for us. Whereas we are going to read newspaper regularly, there is a lot of bunch of words with us. And then after, whenever we are going to talk on any platform, on any subject, without any preparation, at that time we can talk. Because मराठीमध्ये ज्याला म्हणतात आपल्याजवळ जर शब्दसंग्रह असला तर आपल्याजवळ शब्दसंग्रहाच्या वाक्याची कमतरता राहत नाही. आणि जेव्हा वाक्यांची कमतरता राहत नाही तेव्हा माणूस कोणत्याही तयारीविषयी कोणत्याही विषयावर केव्हाही बोलू शकतो. हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. तुम्ही करून बघा. 1 महिना कंटिन्यू रोज एक टॉपिकचं पुस्तक वाचा आणि त्या पुस्तकावर तुम्हाला एखाद्या पब्लिक प्लेसवर जर बोलायला सांगितलं तर निश्चितच तुम्ही उत्कृष्टपणे आपली बाजू आपला विषय बोलू शकता. हा माझा अनुभव आहे. आणि पुस्तकासारखं ज्ञान नाही आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं yes goal whereas you have 1 rupees at that time you purchase the bread in 50 पैसा and you purchase the book of 50 पैसा. 50 पैसे का किताब खरीदिए, 50 पैसे का ब्रेड खरीदिए, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपके पास में शब्द है. इसलिए उनका जो नारा शिका, संगठित हुआ और संघर्ष करा, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको बताया. और बड़े बड़े जो लोग हो गए, बिल गेट्स का उदाहरण पढ़िए. बिल गेट्स महीने में 50 किताबें पढ़ते हैं. सबसे नंबर 1 आदमी वर्ल्ड में पैसे वाला है. लेकिन वो कहता है कि मैंने किताबें पढ़ कर अनेक अमीर लोगों की स्टोरी पढ़ा है और उसमें से मैं अमीर हो गया. और उसके लिए हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द मेजर. मेरा जब सेल्फ कॉन्फिडेंस हम खुद से पूछे कि मैं ये क्या कर सकता हूँ क्या. किसी ने कहा तुम नहीं कर सकता. डोंट बिलीव ऑन हिम. आप कहिए मैं कर सकता हूँ. और मेरा आत्मविश्वास अगर मेरे में खुद है तो वी हैव टू सर्च अवर वे इन पॉजिटिव मैनर. Always I am going to talk when I interact with my teacher. New education policy to start from this academic year. We have to go with France, Japan, Germany. Whatever education policy we are receiving from last decade, 75 years, we are going to celebrate our independence. But our India is where France, Japan, Germany is where we can see the new education policy is the best way for us. In new education policy, there is a startup and whatever it may be. हमारे बच्चों को साथ में मैं हमेशा कहता हूँ स्कूल में आते समय अगर साइकिल आती है तो साइकिल का पंचर को दुरुस्त करते आने चाहिए. Am I correct, sir? This is the startup of
नहीं तो बच्ची को मम्मी को बोला घर में मेहमान आए, बच्ची को चाय करने के लिए बोला, वहां से आवाज बजा के आई पानी कितनी टाको, चाय की चमची कितनी टाको, बस उसका हाथ है। ये नहीं, ये खुद आना चाहिए। हर बच्ची को खाना बनाते आना चाहिए, हर बच्चों को अपना खुद का काम करते आना चाहिए। वही पढ़े लिखे तो यार हम पेपर ओनली graduate, postgraduate. In social activities, I am going to do 40 years work. Whenever I am going to do at home, because daily visit is there. So always I am going to see that there is a Tommy in their home. हम घर में जाते हैं, बैठते हैं, और उधर से घर से आओ, Tommy sit there, don't be naughty. हमें लगता है कि वो इंग्लिश का इंस्टीट्यूशन का घर है, हम तो अपना पैजामा छाप लेते हैं, चुपचाप से बैठ जाते हैं, और फिर बच्चा चिल्ला के आता है, मम्मी वो तेरे पापा बुलाते हैं. This is not English. English is international language. You may start your side from today, whereas I am going to talk 5 sentences daily with my teachers, with my friends, with my colleagues, where they can understand. If there is a mistake, तो individual 85 और seniors, no problem. मैंने उस दिन भी किसी से हमारे टीचर्स लोगों के साथ में शेयर किया, बोला वेस्ट इंडियन का इंग्लिश आपने सुना है क्या? किसी को पूछा वो कैसे इंग्लिश बोलते थे, उनकी तरीका वर्ल्ड कप देखोगे तो कपिल देव कैसे इंग्लिश बोलता था, ओ दैट्स गुड बॉल, आई हैव रिसीव्ड व्हेन आई प्लेड इट हैज गॉन टू द बॉर्डरलाइन, सो फॉर हैव बीन रिसीव्ड आवर टीम हैज गिवन गुड परफॉर्मेंस. वो डायरेक्ट नहीं, उन्हें आप कपिल देव की इंग्लिश. तो यह सब बातें इंग्लिश से डरने का नहीं है. मराठी अपने को आनी चाहिए, हिंदी अपने को आनी चाहिए, मैथमेटिक्स आनी चाहिए. सर्व संपन्न व्यक्तिमत्व. सर ने पहला ही शब्द बोला, व्हाट इज द पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी इज द व्यक्तिमत्व, नॉट पर्सनैलिटी यानी ऊंचा जाड़ा मोटा, दैट इज नॉट व्यक्तिमत्व. आकर्षक नहीं, इवन दो इज द ब्लैक, but personality is good, you can say. So from today we are going to start. मैं सर से निवेदन भी करता हूँ, उन्होंने आके हमारे इस प्लेटफॉर्म को अच्छा बताया. आगे चलती उनकी सेवाएं जो मिलेंगी नगर शिक्षण संस्था की ओर से मैं उनका अधिक आभार करता हूँ और मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ. जय हिंद, जय भारत. Thank you, sir, for giving the guidance to our school. Now, this lecture comes to an end.